Hello, can you guys hear me? Okay, just a minute. Hello, good evening, everyone. So, I hope this timing is comfortable with everyone. So, let's quickly start with the topic. I will not take too much time today as we have to just explore the topic. Rest everything will be up to you. Okay. Okay. So, today we're going to start with the matplotlib. And again, it's an important topic. Either you're working as an normal report. For example, when you will in a final year, you have to create the report for two final year projects. Even if you are working as on a research paper or anything, whenever you need a graph, whenever you need an analysis of lot of data in a graphical way, then you have to use a matplotlib. Okay, so today we will explore it, and it's not that much tough. Okay, there are some features where we have to figure out like which dimensions we should give and which index we have to find. Then there are some things that we will be once habitual of this, it will be too much easier for you to draw it on the matplotlib, either using any other software. Like for example, there are a lot of software that creates the graph, but using matplotlib is quite easier in comparison to the other applications or other softwares.
Let me put it in the chat box, or you can even get it on Google. Started. If you want to do it right now, you can use this pip install matplotlib. It will be easily installing the matplotlib in your Python compiler, whatever you are using. Okay, now the next point is how do we import it? Okay, so let me share my screen now. And again, I will not be able to see the thumb impressions or any other chat, as I will be switching to the VS Code application. So if there is anything, turn on your mic and speak it up. I hope you can see my screen. Okay. Okay. So now let's simply start with the basic example first. Look, first and the basic example. Okay. So whenever you are importing the matplotlib, here you have to use the .py plot. And as we are using the VS Code, I need not to explain everything easily. You can see it here, like it's a state-based interface, like GUI manager and everything. So you can see it here as well. Why we are using this py plot? Okay, and simply what we want to draw here, like before drawing it, let me simply run it. For example, I'm sharing the window of the VS Code. I'm not sure if you can see the graph of it. Can you see the graph? No, sir. Okay. That's where. Let me. Can you see it now? Yes, sir. Okay. So basically, what are the values that we were providing to the graph? We were providing a normal values as a list in x-axis and in y-axis. What we are providing in x-axis 1, 2, 3, 4, 5. And what are the values to this? 1, 4, 9, 16, 25. Okay. So whenever you want to simply plot a normal line or a line which connects to point, then you have to use plt.plot or whatever you're writing the object name, but dot plot and parenthesis x comma y. So it will draw a line connecting the points x comma y. कोई भी दो पॉइंट्स होंगे उनको कनेक्ट करने के लिए आपकी लाइन जो होगी वो ड्रॉ हो जाएगी. ठीक है. अब जो दूसरी चीज इसमें होती है वो होता है एक्स लेबल एंड वाई लेबल. ठीक है. अरे आपको कोड नहीं दिख रहा होगा. So let's come back to the code. Okay. Okay. So now that plot x comma y, that is helpful for connecting the points, any two points, whatever inside the parenthesis, and dot x label and dot y label. This is a normal thing. The label of the axis, whatever you want to put, you can put easily. And when we are using
graph, we need a title for it. Okay, so whatever title you want to give, you can simply write dot title. It adds a title to the plot, whatever you are using, whatever you are plotting, and whatever graph you want to make. And whenever you want to display it, use dot show. Otherwise, if you just want to run it, there's no need of this dot show. Okay, got my point? Any confusion in this before we move ahead? अरे वापस से मुझे आना पड़ेगा इधर. Okay, fine. Okay, now let's take the more examples that are more useful. अब जो सेकंड चीज आती है हमारे पास वो होता है, ये तो होगा सबसे आसान चीज, ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, बहुत सारे हमारे वहां पे आपको बस डेटा डालना होता है, आपका हो जाता है. बट एज आई वाज saying in the starting, the customization feature of the matplotlib is the best feature. ठीक है. So now for example, let me put another code. Wait. Okay. Now, in the same data, I want some customization. Okay. And for example, when we're using this code, like dot plot and then x, y, what color I need red color. What line style I need, dash. What marker we need, O. What label we need, line 1. And again, this was about the modification, how we change the color, how we change the line style, how we change the marker, and how we change the label. Now, and whenever you are doing this type of customization, we have to use dot legend. Okay. And then dot show is the basic thing that you have to always use. Let me run it and let me show you the graph of it. Okay. I hope now you can see the graph. As you can see, as simply what I want, the 2 points will be added because I am using the x comma y addition function, which will add 2 points. I change the color to the red. I change the line shape to the dash, and this everything is same. Okay. And here there was one more thing that I was telling to you, the label. What label I want the label of line 1, then I can put line 1. It's a basic example. It's not like too much of the thing. It is like easier than the HTML as well. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, ये आप आसानी से कर सकते हो. कभी भी अगर आपको बहुत सारा डेटा है, आप उसको लिस्ट में पुट करिए एक्स एंड वाई के फीचर्स में, एंड एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में सिंपली आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आपके पास अगर डेटा है तो. और कई बार जो बेसिक हमें यूज होता है ना, मार्क माई वर्ड, होता क्या है कि जब भी आप रिसर्च पेपर से कुछ भी करा रहे हो तो आपके पास 2 डेटा ही होते हैं मैक्सिमम. आइदर एक्स पे ये हो रहा है, वाई पे ये हो रहा है, वो आपको डेटा पुट करना होता है और एज अ लिस्ट पुट करना होता है. बाकी कलर, लाइन शेप, जो भी लेबलिंग वगैरह कुछ भी करनी होती है वो आराम से ले सकते हो. उस पर स्क्रीनशॉट उठाओ, रिपोर्ट में लगा दो. बहुत आसान होता है कि लोग जाते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं. खैर आजकल तो AI के थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वो अलग चीज़ है. बट जो कस्टमाइजेशन का फीचर होते हैं उसमें वो आइदर पेड होते हैं या फिर प्रो वर्जन के साथ अवेलेबल होते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब आप आसानी से सब कर सकते हो. तो ये तो हो गया कि एक बिगिनर जो मतलब ऐसा समझो मुझे बस ग्राफ बनाने हैं जीवन में, या फिर कुछ एक छोटे से बेसिक टास्क करना है, तो इससे ज़्यादा मैटप्लॉटलिब उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइन ही ड्रॉ करनी होती है, तो आप आसानी से कर सकते हो. Now let's come up with some more customization features that as a data scientist you might have to use. Okay, let me share my code again.
Okay. Yeah. Okay. Okay. So let's take one more example. सेम डेटा में थोड़ा हम ऐड करते हैं नाउ। अब हमारा जो डेटा वो क्या है, कैटेगरीज है हमारे पास। अब हमें जो हम बार आप देख रहे हो कमेंट में बार प्लॉट करके हम ऐड करते हैं और एडिंग द टाइटल ऑन द लेबल्स। ये सेकंड कस्टमाइजेशन हो गया, कैटेगरीज एंड वैल्यूज। पहले हमारे पास क्या था डेटा में एक्स एंड वाई, ठीक है। नाउ just a second. Okay, so again let me run it. First we have to remove the plot.show from here, then we will use it. Remove this whole code. Look. Now I have the what I changed. I changed the plotting design. Instead of line, now I need the bar. So this is how you will see the graph as a bar. जब हमें बहुत सारा डेटा होता है और उसको आपको बार क्रिएट कर, मतलब अगेन हमें, सॉरी जस्ट गिव मी मिनट। तब तक आप लोग जो पीछे वाला कोड था, अगर आप लोगों के पास कंपाइलर है, ट्राई इट आउट, आप खुद से ट्राई करके देखिए, मजा आएगा। मैं कोड शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। ट्राई इट आउट। Okay, so now let's see what is the code of it. Look, so simply when we are using a normal two lines adding, then we have to use the dot plot. Every time whenever you have to use the line feature in the line format, you have to use dot plot and then the parenthesis x comma y. But when you want it to be printed in a bar format, you have to use dot bar simply, and you have to put the categories. Like categories and is in label nothing but, and values is in label nothing but. So every data, for example in categories we have a b c d values, whatever it is. So what I'm doing, categories and values, instead of x and y, if it is x and y, then I will write x and y, no issues. But color, I will be put x sky blue. And as you were seeing in the previous code, that there are some customization as well in display plot. For example, the marker, the line styles, the labeling, same is with
this dot bar. Lot of customizations are available. You can just go through with the Google. Lot of customizations are available that you can put inside either this dot plot or inside either this. By the way, someone please confirm if you can see my code and what I'm scrolling and what I'm marking. So use the mic please. कुछ नहीं दिख रहा मुझे, अंधेरा छाया हुआ है मुझे यहाँ. Yes, sir. Thank you. Okay, so as I was saying that inside this dot bar, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिखाता रहता है. Array, hike, align, literal, जो भी अंदर के फंक्शन के जो फीचर्स है वो दिखाते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर बार के अंदर मुझे बहुत सारे अगर कस्टमाइजेशन करने हैं दैट आर अवेलेबल, आप गो थ्रू करोगे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाएंगे. बट जो फॉर्मेट होता है वो बार होता है, यहाँ पे वो डॉट प्लॉट होता है. बाद में जो कस्टमाइजेशन करना है वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो. लेबलिंग और ये टाइटल ये तो कॉमन ही होते हैं हर एक में, चाहे कहीं पे भी आप कोई भी फीचर यूज करो सब में ये दोनों चीजें क्या होती हैं, कॉमन. तो नाउ लेट्स कम बैक विद अनदर एग्जांपल. तो ये देखा आपने कि इन केस अगर आपको बार में कभी प्रिंट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डॉट बार यू कैन प्रिंट इट इन अ फॉर्मेट ऑफ बार. सेम डेटा, अभी हम मल्टी डायमेंशनल डेटा नहीं ले रहे हैं. अभी जो हमारा डेटा है वो सिंगल वन डायमेंशनल डेटा है. ऐसा नहीं है कि हम इसमें डिक्शनरीज या कुछ और पुट कर रहे हैं. फिलहाल हम एक लिस्ट में ही डेटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है. नाउ एक और फीचर होता है जो हम यूज करते हैं. लेट मी पुट द कोड. Let's see how we can customize the matplotlib with the help of NumPy. Look. Now, let's remove this whole thing. ठीक है, अब मैंने क्या किया, रैंडम डॉट रैंड. कौन बताएगा जल्दी जल्दी ये डॉट रैंड फंक्शन से क्या आउटपुट आने वाला है डॉट रैंड 50 से? बोलो प्लीज. अब तो ये तो क्विज में भी था. डॉट रैंडम डॉट रैंड 50 में क्या आउटपुट आएगा एक्स को? एक्स की वैल्यू क्या क्या है? कोई तो बोल रहा है, वापस आना पड़ेगा. बोलो रैंडम डॉट रैंड में क्या क्या आउटपुट आने वाले हैं इसमें एक्स और वाई में? डॉट रैंड किसके लिए यूज करते थे हम? अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए भाई, ये 3 दिन पहले से पहले अभी क्विज में ये क्वेश्चन था भाई. डॉट रैंड क्या होता है बोलो भाई. ऐसा मत करो, ये तो बहुत बेसिक चीज है. फिर मैटप्लॉटलिब का कोई फायदा नहीं. हम नमपाई रिवीजन कर लेते हैं एक बार. याद है डॉट रैंड इसी को? रैंडम नंबर होगा, फ्लोट होगा 50 तक. है क्या होगा? रैंडम फ्लोट जनरेट होगा 50 तक. फ्रूट जनरेट होगा? फ्लोट 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 नंबर, फ्लोट FLOAT. फ्लोट. ओके 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 ओके. चलो देखते हैं क्या क्या होगा. एवरीवन प्लीज डू रिवीजन एटलीस्ट. छोटे छोटे फंक्शंस तो याद रखो, क्योंकि ये इसके बिना काम नहीं चलता. फिर कुछ भी काम नहीं चलता. जब आप दो चीज लिंक नहीं कर पाओगे तो फिर आप प्रोग्रामर बनने का तो फिर कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता. क्योंकि बेसिक नमपाई सेपरेटली, पांडा सेपरेटली और मैटप्लॉटलिब सेपरेटली बहुत आसान चीज़ है. मैंने अभी आपको देखा बार क्रिएट कर लो, ये क्रिएट कर लो. जब चीज़ें टफ कब होती हैं? जब 5-6 टॉपिक एक साथ मिलके हम काम कर रहे होते हैं, वही मीनिंगफुल आउटपुट होता है. कोई प्रोजेक्ट अगर हम बनाने जाएंगे ऐसा थोड़ी है कि नमपाई का प्रोजेक्ट बनाने को मिलेगा, पांडास का प्रोजेक्ट बनाने को, सारे कॉम्बिनेशंस ही आते हैं. ओके, सो प्लीज हैव अ रिवीजन एवरी टाइम. ओके, सो लेट्स सी कि ग्राफ क्या बनता है. उसके बाद हम कोड देखते हैं. लेट्स रन इट. पहले इसको स्टॉप करते हैं. Now let me share my screen again. Look, can you see this? तो जो नाम है फंक्शन का वही हो रहा है. हमने कौन सा फंक्शन यूज किया? मैटप्लॉटलिब का स्कैटर. परफेक्ट. तो ये क्या हो रहा है? जो हमारा डेटा है ना वो स्कैटर्ड है. स्कैटर्ड ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के कुछ वैल्यूज पड़े. हम बस क्या नहीं कर रहे हैं, हम बस उनको लाइंस को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं.
तो हमें जो लाइन्स आनी चाहिए थी ना, वो लाइन ना आने के बजाय रैंडमली हमें कुछ डेटा आ रहा है, उस डेटा को हम स्कैटर कर रहे हैं। अगर ये सेम लाइन, सेम एक्स और वाई की वैल्यूज आप रखेंगे किसमें, वो लाइन वाला जब हम पढ़ रहे थे या बार वाला जब पढ़ रहे थे, यानी कि आप इसको रखने जाओगे डॉट बार में या फिर आप इसको रखने जाओगे डॉट प्लॉट में, तो आपको लाइन मिल जाएगी, ये बार मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इसके थ्रू आप सिर्फ डॉट्स पा सकते हो। आप ये सारे के सारे ग्राफ्स आपने कहीं ना कहीं देखे ही होते हैं, अगर आपने कुछ भी यूज कर रहे हो तो, चाहे आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो तो, या कुछ अपनी बुक में देख रहे हो तो, या कहीं पे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो तो आपने ये बहुत सारे टाइप के ग्राफ देखे होते हैं। एंड दे आर easiest way to design them with the matplotlib. ओके, तो आप ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को यूज करके आप काफी बेटर लुकिंग ग्राफ बना सकते हो। और यू नो ऐसे ग्राफ पुट करके आपकी रिपोर्ट हो, चाहे आपका इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट हो या कुछ भी, आपको जब भी आपको कोई रिपोर्ट फाइल बनानी होती है, यूज दिस फीचर्स, रियली इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि जब हमने क्या करना है, स्कैटर करना है डेटा। ठीक है, लेट मी अगेन एक्सप्लेन द कोड। लुक, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, आई एम सिंपली यूजिंग द स्कैटर फंक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ इट व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी ड्राइंग द ग्राफ बट विदाउट कनेक्टिंग दोज पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है वो पुट करेगा एक्स और वाई की जगह, बट वहां पे उन पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं करेगा, बाकी सारा सेम है। एक्स वाई में जो हम कर रहे थे, सॉरी प्लॉट में जो कर रहे थे हम, या बार में कर रहे थे, बाकी कुछ अलग नहीं है। ये अभी बस हम देख रहे हैं कि ग्राफ को या फिर हमारे डेटा को हम कितने टाइप से प्लॉट कर सकते हैं। Either it is a line, either it is a bar, either it is an scattered data. ठीक है, तो एक ये हो गया। Let's put one more example. Let me put, बस उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होते, बस ये कुछ ऐसे समझो 4 या 5 ही होते हैं जो मेजरली हम यूज कर रहे होते हैं, बाकी सारा तो रिपीटेड ही होता है, उसी में सारी चीजें हम करते रहते हैं। Look, हिस्टोग्राम, आपको पता होगा हिस्टोग्राम में क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको हम रन कर लेते हैं, फिर समझेंगे क्या कैसे बन रहा है। वैसे हिस्टोग्राम और ग्राफ में कोई फर्क, सॉरी बार में कोई फर्क होता है क्या, होता है क्या कि एक ही चीज होती है? अरे सोए हुए लोगों, होता है क्या, बोलो यार, होता ही है स्पेस यार। होती है, स्पेस होती है। हिस्टोग्राम में दो वैल्यूज के बीच में स्पेस नहीं होती। ऑब्वियसली, देख रहे हो, तो ये हो गया हमारा क्या, हिस्टोग्राम। और बार में क्या होगा कि बस जो लाइन होती है बीच में, वो बार के फॉर्म में होता है, बीच में स्पेस आ जाता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, आप ऐसे माउंटेन टाइप के कर्व या जो भी आपको कर्व बना दो, वो क्या होता है हमारा हिस्टोग्राम। और उसके करने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, एक और जैसे डॉट बार लिखा था हमने, वैसे हिस्टोग्राम के लिए लिख लेना। लुक, ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से पढ़ लिए, डॉट प्लॉट पढ़ लिया, डॉट बार पढ़ लिया, और ये हो गया डॉट हिस्ट हो गया, और एक और हमने पढ़ लिया स्कैटर। ठीक है, तो इनके अलावा एक दो और देख लेते हैं, फिर हमारे जो टाइप्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे कि हम कितने टाइप से डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। Let me give one more example. पाई चार्ट और देख लेते हैं, फिर कुछ करते हैं। आई होप आपको पता होगा पाई चार्ट कैसा क्या होता है, और इनको पता है, याद करना बड़ा आसान है, कि कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सिंटेक्स याद करना है। सबका सिंटेक्स, सारे टाइप्स का सिंटेक्स सेम है, चाहे कुछ भी हो, स्कैटर हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे बार हो, हिस्ट हो, ऐसे एक और आ गया पाई। बस इसमें जो %1.1f% है, ऑटो पीसीटी, क्या कोई बता सकता है बिना मेरे पता ये क्या लिखा है? क्या हमने कभी देखी ऐसी चीज, %1.1f%? कभी भी शायद स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ रहे थे तब हमने शायद कुछ ऐसा देखा था क्या, कुछ पता है क्या, कभी कुछ बोला था मैंने?
हो गया कंप्लीट? सिर्फ वो सेंसर नहीं अटैच किया, बाकी सब करने लग गया। वो कौन सा सेंसर? कन्वेयर बेल्ट और वो थ्रस्टर्स। सेंसर्स रख लेना साथ में। जी बोलिए यार, बोलो यार, क्या हो जाता है आप लोगों को? प्लीज, ऑपरेटर्स ही सिंपल से। परसेंट किस में यूज करते हैं? परसेंटेज में ना यूज करते हैं। और एफ का मतलब क्या होता है? लोग देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीज है, प्लीज आप लोग ये रिवाइज करो, वरना ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, लेट्स सी द ग्राफ ऑफ इट। देखो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बन के आ रही हैं, इसके ग्राफ बड़े अच्छे लगते हैं। लेट मी शो माय स्क्रीन अगेन। और ये डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो पाई चार्ट में तो कैसा दिख के आता है? लुक, अब ऐसा मत बोल देना कोई माइक ऑन करके कि अरे सर क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कैनवा यूज करना आता है, मैं कैनवा पे जाके ये सारे ग्राफ बना लूंगा। क्या फिजूल में मैटप्लॉटलिब डॉट पाई डॉट चार्ट डॉट सब ये सब पढ़ा रहे हो? ऐसा तो नहीं कोई सोच रहा कि कैनवा पे जाके हम बना लेंगे या पावर पॉइंट पे जाके बना लेंगे और पेंट नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है वहां पे जाके बना लेंगे, है ना? ऐसा वैसा सोच रहे हो तो बता दो, ऐसा तो नहीं है कुछ। Look, whenever we are using this type of feature, initially when we are using a data of 4, data of 5 sets or data of 6, 7 sets, that might be looking easier to us. But again, I am telling that जो मैंने आपको डेटा भेजा था, उस डेटा को एक्सपोर्ट करना with the help of either numpy or pandas, जो भी आपको यूज करना हो, उनके एरे बना के या उनकी लिस्ट बना के वो डेटा की, उसको आपको जब आप उसको पाई चार्ट पे डालोगे ना, जब उसको बार पे डालोगे, जब उसको आप स्कैटर करोगे, तब आपको वो डेटा दिखेगा ना, तब लगता है हाँ अब थोड़ा यूजफुल दिख रहा है। वरना तो ऐसे लगता है कि कैनवा पे बहुत आसानी से बन जाएगा बहुत सारे अच्छे फीचर्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका? पाई चार्ट का एग्जांपल डॉट पाई करके। एक बार हम वापस से कोड पे आ जाते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या हो रहा है? जो ऑटो पीसीटी, बाकी सब तो अगेन सेम है, डॉट पाई साइजेस लेबल्स, इसका कुछ नहीं है, लेबल्स इक्वल्स लेबल, ये सब आपको बाकी सब में इसमें कॉमन है, कुछ उसमें नया नहीं है। बट इसमें बस ये ऑटो पीसीटी होता है जिसमें आप डिफाइन करते हो कि कितना परसेंटेज ईच स्लाइस पे हमें चाहिए। ठीक है, वो आप क्या करते हो कि यानी कि जो 25, 35, 20, 20 है, इसको अगर आप ऑटो पीसीटी नहीं लिखोगे तो उसे नहीं पता पड़ेगा कि परसेंटेज को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जब भी हमें जो हमारी स्लाइसेस आ रही थी उसमें आपको परसेंटेज को डिस्प्ले करना है, तो आप क्या यूज करना है? ऑटो पीसीटी। ठीक है, ये वापस एक फंक्शन हो गया हमें किसके अंदर? मैटप्लॉटलिब के अंदर, और मैटप्लॉटलिब में किस ऑब्जेक्ट के अंदर? पाई के अंदर। ठीक है, पाई फंक्शन के अंदर, सॉरी। ठीक है, एंड एक और आप देख रहे हो कि स्टार्ट एंगल, कि अगर आप, क्योंकि देखो जब आप पाई चार्ट बनाने जाते हो तो कुछ आपको स्पेसिफिक इनिशियल पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब आपको रोटेशन आपको जब भी देखना होगा तब आपको क्या डिफाइन करना होगा? स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल 90 है, मतलब कि ये 90 डिग्री पर रोटेट करेगा पाई चार्ट को, सो दैट इट कैन स्टार्ट एट ए स्पेसिफिक एंगल। अगर मैं 90 की जगह 180 लिखूंगा तो ये 180 के एंगल से स्टार्ट करेगा। जो ग्राफिंग की पहला ग्राफ बनेगा ना, पहली लाइन जो ड्रॉ होगी वो कहीं ना कहीं से तो बनानी पड़ेगी ना, वरना जो शेप थी वो एकदम ऐसे आ जाती कि सर्कल, फिर उसकी दो डायमीटर एकदम परपेंडिकुलर, वैसे शेप आ जाती। लेकिन नहीं, हमें चाहिए था कि 90 डिग्री से स्टार्ट हो, 0 के बजाय 90 से स्टार्ट हो। अब ऐसे आप बहुत सारे चेंजेस आप खुद से कर सकते हो इसमें। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। Let me put the code. लो, अब हमारा जो डेटा है वो बढ़ गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमारे पास या तो x था या y था। अब हमारे पास x के साथ y1 भी है और y2 भी है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसमें सब प्लॉट डिजाइन कर रहे हैं। कैसे डिजाइन हो, क्या आएगा? इसकी पहले हम डिजाइन देखते हैं। आपने डेटा देखा कि इसमें कितने डेटा हमारे पास? x, y1 एंड y2, और हम डिजाइन क्या करना चाह रहे हैं? सब प्लॉट। ठीक है, ये अभी
रुको बाकी हम देखते हैं कैसे क्या, बट सब प्लॉट डिजाइन करना चाह रहे हैं, और प्लॉट जो हम नॉर्मली करते हैं वो तो है ही है, बट उसका हमें सब प्लॉट भी चाहिए। पहले स्क्रीन डिस्प्ले देखते हैं। जितनी भी लाइब्रेरीज हम देखते हैं ना पाइथन के अंदर, सारी कूल है, चाहे वो numpy हो, पांडा हो, बट जैसे मैटप्लॉटलिब वगैरह हो गए, इनमें ना सामने जब आउटपुट आता था बड़ा देखने में अच्छा लगता है, हाँ चलो कुछ तो बन रहा है, ड्राइंग जैसे ही सही। अभी बहुत सारी भी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आप गेम वगैरह भी जब बनाते हो तो लुक AI की जब हम लाइब्रेरीज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उनको, ठीक है। तो सेम प्लॉट का जब आपको, मतलब मेरा डेटा तो फिक्स ही है ना, एक्स का डेटा मैंने फिक्स रखा, y1 और y2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब प्लॉटिंग कर रहा हूँ। तो मैं एक और फंक्शन यूज करूंगा डॉट सब प्लॉट, जो मेरी हेल्प करेगा अगर मुझे 1 ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 5 ग्राफ, जितने भी ग्राफ बनाने हैं, तो उनको मैं क्या करूंगा, सब प्लॉट मैं रख दूंगा। अब देख रहे हो आप, मैं पहले यहाँ पे, मतलब मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, चाहे मैं कैनवा यूज कर रहा होता है, कोई और फंक्शन यूज कर रहा होता है, कोई और सॉफ्टवेयर, कि मैं y1 के लिए ब्लॉक बनाऊं, फिर y2 के लिए ब्लॉक बनाऊं, फिर उसको डुप्लीकेट करके लगाऊं, फिर लाइन को स्ट्रेट करूं, फिर उसके ऊपर लिखूं फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट विद। आपने किसी ने ओवरलीफ यूज किया है क्या, या सुनना है ओवरलीफ करके कुछ होता है? ओवरलीफ सुना है किसी ने? प्लीज ऐसा मत करो, आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, ओवरलीफ नहीं सुना? आपके प्रोफेसर्स का मुझे नंबर दो, मैं आप उन सबको, सॉरी मेल दो, मैं मेल करूंगा, इन लोगों ने ओवरलीफ नहीं सुना। सर लेटेक्स। लेटेक्स यस सर। मैटलैब में था, हाँ। तो जब आप ओवरलीफ, मतलब बहुत सारे लोग, आई डोंट नो कैसे, बट वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना कि वर्ड डॉक्यूमेंट और ओवरलीफ का कंपैरिजन करने लग जाते हैं। लेटेक्स बोल लो, ओवरलीफ तो चलो एक कंपाइलर की तरह ही मान लो, हो गया, बट लेटेक्स लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जब हम, तो जब हम, बाय द वे वो लेटेक्स नहीं होता, वो लेटेक होता है, लेटेक। ये मुझे शायद 3rd ईयर में पता पड़ा था, उसको हम लेटेक्स नहीं बोलते, उसको लेटेक बोलते हैं। आप एक बार गूगल पे चेक करिएगा, ठीक है। तो जो लेटेक होता है या लेटेक्स होता है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम ना रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, जो वर्ड डॉक्यूमेंट लोग बनाते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, वर्ड की बजाय हम लेटेक्स को प्रेफर करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें जब रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती है तब हमारे पास कई बार 100 पेजेस होते हैं, और वर्ड में क्या होगा कि आपने अगर किसी एक का पेज नंबर चेंज कर दिया 7 से 8, या फिर कहीं पे आपने कोई फीचर यूज किया था जो आपने चेंज किया, बट उसके रेस्पेक्टिवली आप सारे आपको खुद से मैन्युअली चेंज करने पड़ेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। बट ओवरलीफ में क्या होता है, सारे फीचर्स अपने आप डिफाइंड होते हैं, आप किसी जगह डॉट चेंज कर रहे हो, किसी जगह आप एक हेडर हटा रहे हो, या कोई फुटर चेंज कर रहे हो, या फिर इनपुट में सब पैराग्राफ्स हटा रहे हो, पैराग्राफ के टेक्स्ट हटा रहे हो, वो आसानी से हो जाता है। ऐसे ही हम क्या कंपेयर कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब का और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेटा प्लॉटिंग के लिए उनका, कि कस्टमाइजेशन का फीचर जब हमारे पास आता है, या फिर जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा आता है, तब हम हमेशा मैटप्लॉटलिब को ही प्रेफर करते हैं। वरना अगर आप लोगों को नहीं पता है लेटेक, तो पहले जाके एक्सप्लोर करिएगा। आप लोगों की इंटर्नशिप पीरियड तो है ही, वो तो है ही, बट अभी आप लोगों के फ्री टाइम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे टॉपिक्स एक्सप्लोर करिए, वरना आपके सामने कोई आके बोलेगा कि आज मैंने ओवरलीप पे ड्रॉ किया था, फिर आपको समझ नहीं आएगा ओवरलीप क्या होता है, लेटेक क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता, ट्राई टू एक्सप्लोर। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो अभी आपको एज एन इंजीनियर पता होने चाहिए, बट वो पता होते हैं जाके, हो सकता है किसी को 3rd ईयर या किसी को फाइनल ईयर में तो ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं सारे पता, क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज होते हैं। फिर अचानक से आंखें खुलती हैं, अच्छा ये भी था, ये भी था। तो ऐसा मत करना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, टूल्स वगैरह, उनको एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। नाउ लेट मी शेयर अनदर एग्जांपल। कोड पे हम वापस आते हैं। बस फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज आपको रिवीजन के लिए दूंगा, ठीक है। इसमें कोड को अगर मैं वापस से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसमें कुछ नहीं होता, जो आपने देखा डॉट से अपलोड करोगे आप, और फिर इसमें आप डिफाइन करना होगा कि कौन सी रो से उठाना है, कौन से कॉलम से उठाना है। यानी कि जो 1 2 जो होता है इनिशियल के जो 2 नंबर्स होंगे, वो पहला नंबर डिफाइन करेगा रो, दूसरा नंबर डिफाइन करेगा डेटा कॉलम का, ठीक है। किसमें? सब प्लॉट फंक्शन में। और एक बार जब आप सब प्लॉट डिफाइन कर देते हो, और ये तो है ही प्लॉट 1 और प्लॉट 2 लिखने के लिए, जो आप ऊपर दिख के आता है एज एन लेबल, वो तो है ही। दूसरा, जब आप इसमें डॉट प्लॉट यूज कर रहे हो, तब x, y1, यानी कि पहले डेटा आप x ले रहे हो, कॉमन डेटा आप ले रहे हो y1 से, ठीक है।
बट जो हमने दूसरा बनाया था उसमें भी हमने क्या करना है, सेम चीज सारा कुछ, बट x और y2, x और y1, x और y2, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो जो इसका सिंटेक्स होता है वो आप ऐसे समझिए, डॉट सब प्लॉट, फिर होता है n रोज, n कॉल्स और इंडेक्स। ठीक है, यानी कि आप अगर प्रोफेशनल वे में अगर बोलते हैं तो हम इसको बोलते हैं n रोज, n कॉल्स एंड सॉरी इंडेक्स, यानी पहला नंबर n रोज यानी नंबर ऑफ रोज बताता है, दूसरा नंबर नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है, और थर्ड वन इंडेक्सिंग बताता है कि कौन से नंबर का सब प्लॉट हमें डिजाइन करना है। ठीक है, अब हम जरा सा एक देख लेते हैं एग्जाम्पल कि बार प्लॉटिंग करनी हो बट एक हैबिचुअल डेटा के साथ, लाइक रियल लाइफ एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हैं, इतना भी रियल लाइफ नहीं बट देख लेते हैं। नंपाई के थ्रू हमने देख लिया तो इसलिए ये एग्जांपल वापस ले लेते हैं जिससे पता पड़े कि हाँ पांडास के साथ भी मैटप्लॉटलिब कंपेटेबल है। सो लेट मी रन दिस। पता ही है सबको क्या लिखा है, अब इसको तो मैं एक्सप्लेन क्या ही करने जाऊँ कि ये रहा हमारा वापस से एक, क्या है ये मत बोलना डिक्शनरी है भाई, डेटा फ्रेम बना रहे हैं हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पांडास। अब उस डेटा फ्रेम को, डेटा फ्रेम यानी कि क्या बात आ गई, हमारा डेटा कौन सा है, 2 डायमेंशनल डेटा। अभी पहले डेटा क्या आंसर था, 1 डायमेंशनल डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम बार प्रिंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा फ्रेम, और इस डेटा फ्रेम के कौन कौन से एलिमेंट्स उठा रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन से डेटा फ्रेम में क्या होता है, लेबल्स, तो हम वो कौन कौन से लेबल्स उठा रहे हैं, सॉरी मैं लेबल्स बोल देता हूँ, कभी कभार लेबल बोल देता हूँ, लेबल्स, LABLES। ठीक है, तो लेबल्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, ईयर, सेल्स, 2 लेबल्स का हम यूज कर रहे हैं, और इनके थ्रू हमें क्या प्रिंट करना है, एक बार प्लॉट करना है। ठीक है, विद द टाइटल ऑफ सेल्स ओवर ईयर्स, ईयर सेल्स जो भी। अब आप, ये मैंने एग्जांपल किस लिए लिया है, सिर्फ इसलिए लिया है जिससे कि आपको ये समझ आ सके कि इसकी जगह मैंने अगर कोई CSV फाइल इंपोर्ट करी होती और फिर उसका डेटा फ्रेम क्रिएट किया होता और मुझे कुछ नहीं करना होता, बस CSV फाइल का यहाँ पे एड्रेस होता, CSV फाइल इंपोर्टेड होती, और उसके बाद यहाँ पे CSV फाइल को मैं एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता DF नाम का, और वहाँ पे DF में और जो भी उस CSV फाइल के कंपोनेंट होते हैं, लाइक कॉलम्स के नेम होते, लेबल्स होते, उसका नाम लिख देता और इसको रन कर देता। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो रील वायरल है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब कितना भी डेटा उसका मुझे क्या मिल जाएगा, बार डेटा मिल जाएगा। लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके ओके, ये आ गया कि 2017.5 यानी कि थोड़ा आधा साल आगे जो हमारी सेल्स थी वो इतनी थी, 2018 में इतनी बढ़ी, फिर 19 में इतनी हुई, फिर 2020 में इतनी हुई, फिर 2021 में इतनी हो गई। अब जैसे आप ये देख रहे हो ना कि बार साइज मतलब बार की विथ है या फिर बार का कलर तो हमने देख लिया, विथ वगैरह को भी एडजस्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको सब गूगल पे ट्राई करना है, सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको पता करना है कि आपकी सेल्स कितनी, बट ग्राफ के थ्रू, क्योंकि मैं जब मैटप्लॉटलिब बनाने का रीजन भी यही था कि अगर मेरे को डेटा देखना है कोई 1 मिलियन डेटा, तो मैं उसको देख के नहीं पता कर सकता कि भाई आउटपुट क्या है, बट उस डेटा को जब मैं ग्राफ में पुट करूंगा तब मुझे पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है मेरी कंपनी में। ठीक है, क्या फीडबैक्स आ रहा है डेटा का, या तो मैं परसेंटेज देखूंगा, बट परसेंटेज आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू देती है, विजुअल ग्राफिक्स नहीं देती है, इसलिए विजुअल ग्राफिक्स के लिए ये नई लाइब्रेरी बनाई गई थी मैटप्लॉटलिब नाम की। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, हैव क्यूरियोसिटी। यार देखो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे प्रोफाइल में तभी ऐड होते हैं जब हमारे पास थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है और हमें पता होता है पीछे क्या हो रहा होता है। आपने जितनी भी लाइब्रेरीज पढ़ी है ना, ये पांडास, नंपाई, और आज हम ये मैटप्लॉटलिब देख रहे हैं, और तीसरी भी थी क्या कोई, नहीं अभी तो दो खत्म हुई थी, तीसरे चल रहे हैं। आप इनके ना बैक में कोड देखो जाके कि नंपाई का कोड कैसा होता है, पांडास के कोड्स कैसे होते हैं, बैक साइड में लाइब्रेरी का जो कोड होता है, जो मैं आपको एक दिन बता रहा था कि मेन के पीछे का कोड क्या था, मैटप्लॉटलिब के कोड कैसे होते हैं, ये सारी चीजें जब आप खुद से करोगे ना, पहली बात तो होती है इंटरेस्ट पड़ता है, दूसरी बात आपको पॉइंट्स मिलते हैं खुद के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आइदर यू आर रिप्रेजेंटिंग इन एन इंटरव्यू और आइदर यू आर नॉर्मली टॉकिंग टू अ पर्सन ओवर अ सेम टॉपिक। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो यार कि इनके पीछे का कोड क्या है लाइब्रेरीज का, आप जाके देख सकते हो। और इवन दो एक मिनट में आपको शेयर करता हूँ, अभी उसका कोड शेयर नहीं कर सकते, थोड़ा सा हमारे लिए वो
क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल है। वे ट्राइंग टू डिज़ाइन ओएस। आपको बगल में जो 2 फाइल दिख रही थी, हाँ मतलब हमारा ही प्रोजेक्ट है एक, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अभी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी कि हम अपना ओएस बनाने के लिए ट्राई करें, एक कस्टमाइज ओएस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एज आई वाज टेलिंग यू इन द आई गेस इन फर्स्ट और सेकंड सेशन कि हम जब कस्टमाइज ओएस क्रिएट करते हैं, जैसे कि लिनक्स बेस्ड बहुत सारे, तो हम बहुत सारे कस्टमाइज बेस्ड ओएस भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ हमारे फीचर्स हों, ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आप भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, बट व्हाट इट नीड प्रैक्टिस। चैट जीपीटी के थ्रू वो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग हियर। और मैटप्लॉटलिब में बहुत सारे फंक्शंस हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट और थोड़े से टफ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ जब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें मुझे पूरा फॉर्मूला बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है। सारी चीज़ आप सिंपली गो थ्रू करके प्रैक्टिस करके आराम से ले सकते हो। बट व्हाट आई कैन हेल्प यू, मैं आपको स्पेसिफाई करके बता सकता हूँ कि आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो आपको भी पता है। तो टॉपिक्स कुछ 2-4 और हैं इसके मैटप्लॉटलिब के जो थोड़े से टफ पड़ते हैं या फिर समझने में थोड़ा सा अजीब लगता है उनको, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी आप लोग इनको एक्सप्लोर करिए, आपके पास डेटा सेट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे डेटा सेट पड़े हैं। आपको अगर लगे कि आपको डेटा सेट कम पड़ रहे हैं, आप मुझे बोल दीजिएगा। मैंने लास्ट भेजा था शायद वो ये लो चला भी गया एक छोड़ के, इसका ज्ञान शुरू हो गया इसलिए चला गया। तो मैंने जो लास्ट भेजा था उसमें 10,000 तक का था। मेरे पास डेटा सेट्स हैं 1 मिलियन तक का भी, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। बट पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि आपने वो डेटा सेट जो जोमेटो वाला था वो आपने उस पर कुछ किया है, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसी पे देने वाला हूँ, जोमेटो वाले डेटा सेट पे, ठीक है। ओके, बाय बाय। एनी क्वेश्चंस गाइस?